Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you'll be fine. This is the chapter number 11, The Hitchhiker, a very interesting story of your textbook, New Oxford Modern English, Book 7. And today I'm going to share with you the reading part along with the explanations. So hold a pencil in your hands. We have already discussed the word meanings in the earlier video, and now today we are going to read this story and find out what's inside this story. So watch the video till the end. Please hit the like button and subscribe to my channel. Let's start our today's lesson. I had a new car. It was an exciting toy and big BMW 3.3 Li. Li means long wheelbase fuel injection. It had a top speed of 129 miles per hour. That is, in an hour it goes to 129 miles and terrific acceleration. The body was pale blue, the seats inside were darker blue, and they were made of genuine soft leather. The windows were electrically operated, and so was the sunroof. The powerful engine growled and grunted impatiently at slow speeds, but at 60 miles an hour, it began to purr with pleasure. So he is all describing about his car, and he is telling about his new BMW, about its speed, about its color, and how it reacts at different speeds. I was driving up to London by myself. It was a lovely June day. I was whispering along at 70 miles an hour, leaning back comfortably in my seat. Ahead of me, I saw a man thumbing a lift. So, a man was thumbing a lift. और एक सुबह थी बड़ी खुशगवार सी, और ये जा रहा था अपनी गाड़ी में गुनगुनाता हुआ, और इसको एक आदमी ने लिफ्ट मांगी. I brought the car to a stop beside him. I always stop for hitchhikers. I knew just how it used to feel to be standing on the side of a country road, watching the cars go by. I hated the drivers for pretending they didn't see me, especially the ones in big cars with 3 empty seats. तो यहाँ पर इसने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया कि जब इसको एक हिच हाइकर नज़र आया जिसने लिफ्ट मांगी इससे, तो इसने उसके करीब जाके गाड़ी रोकी, और उसने ये भी बताया कि कैसा फील होता है कि अगर मैं इसकी जगह पर हूँ और गाड़ियाँ आती हुई तेज़ी से गुजर जाएं और मेरी तरफ मुझे इग्नोर कर दे, मेरी तरफ ना देखें, जबकि उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हों और तीनों सीट्स उनकी खाली भी हों. तो इसलिए मैंने उसके लिए अपनी गाड़ी को रोक दिया. हिच हाइकर सेड, गोइंग टू लंदन गवर्नर. तो ये जो गवर्नर यूज़ करते थे वर्ड्स, ये सर की जगह पे थोड़ा सा इम्पोलाइट वर्ड था, लेकिन उसने क्या कहा, क्या तुम लंदन जा रहे हो? Yes, I said jump in. He got in and drive on. He was a smally, ruddy-faced man with grey teeth. His eyes were dark and quick and clever, like a rat's eyes, and his ears were slightly pointed at the top. He had a cloth cap on his head, and he was wearing a greyish-colored jacket with enormous pockets. So it is all about the hitchhiker. He described his physical appearance कि वो कैसा दिखता था. काफ़ी sharp minded दिख रहा था, काफ़ी तेज़ था, क्लेवर सा था, और उसकी स्किन कलर कैसा था, उसके दांत कैसे थे, ये सब कुछ उसने उसका थोड़ा सा ओवरव्यू यहाँ पे बयान कर दिया. What part of London are you headed for? I asked him. मैंने उससे सवाल पूछा कि लंदन के किस इलाके में जाना है, किस तरफ जाना है. I'm going right through London. He said I'm going to Epsom for the races. तो उसने जो है वो जितने भी आखिर में जो जी वाले वर्ड्स होते हैं ना, उन सब के आगे अपोस्ट्रॉफी लगा दिया और जी को उसने साइलेंट कर दिया. तो उसने क्या कहा कि मैं जा रहा हूँ लंदन से होते हुए एप्सम रेसेस के लिए, जहाँ पर रेसिंग होती है ना, मुझे वहाँ जाना है. आई विश आई वर गोइंग विद यू. आई सेड आई लव बेटिंग ऑन हॉर्सेस. तो मैंने उसकी बात को ऐड करते हुए कहा, काश मैं भी तुम्हारे साथ जाता, मुझे ना घोड़ों पे शर्तें लगाना बहुत अच्छा लगता है. आई नेवर बेट ऑन हॉर्सेस, ही सेड. आई डोंट even watch him run. That's a stupid, silly business. Then why do you go? I asked. मैं तो कभी भी शर्तें नहीं लगाता घोड़ों पे, बल्कि मुझे तो उनकी रेस भी पसंद नहीं है. तो उसकी बात सुन के मैं हैरान हो गया. मैंने कहा, तो फिर तुम जा क्यों रहे हो, मतलब why the hell are you going there? He didn't seem to like that question. His little ruddy face went absolutely blank, and he sat there staring straight ahead at the road, saying nothing. तो उसको मेरा ये सवाल कुछ पसंद नहीं आया. वो सीधा देखने लगा, और उसका जो चुईया जैसा फेस था वो बिल्कुल खामोश हो गया, बिल्कुल ब्लैंक हो गया, जैसे उसको जवाब देने के लिए कुछ ना आता हो, और बिल्कुल सीधा बैठ गया और बगैर कुछ कहे
चुपचाप हो गया। आई एक्सपेक्ट यू हैव टू वर्क द बेरिंग मशीन्स और समथिंग लाइक दैट। तो मैंने खुद ही जवाब दिया, यकीनन तुम वहाँ पर कुछ हेल्पिंग हैंड के तौर पे काम करते होगे। दैट्स इवन सिलियर, ही आंसर्ड, एनी फूल कुड डू दैट। ये तो इससे भी ज़्यादा बेवकूफ़ाना है कि रेसिंग देखनी जाए तो मैं वहाँ पर कोई हेल्पिंग हैंड के लिए जाऊँ, ये तो बेवकूफ़ लोगों का काम है। उसने जवाब दिया, ये तो कोई भी कर सकता है। There was a long silence. I decided not to question him anymore. I remembered how irritated I used to get in my hitchhiking days when drivers kept asking me questions. I used to hate it. तो यहाँ पर फिर मैंने सोचा, ओवर थिंकर था थोड़ा सा ये जो ड्राइवर था, इसने कहा कि खामोशी हो गई और फिर मैंने उससे कोई सवाल नहीं पूछा। मुझे वो दिन याद आ गए कि जब मैं हिच हाइकर हुआ करता था, लोगों से लिफ्ट मांगा करता था और जो ड्राइवर्स होते थे वो मुझसे उल्टे सीधे अजीब गरीब सवाल करते थे जो मुझे बहुत इरिटेट करते थे। तो इसी फीलिंग को मैंने एम्पैथाइज करते हुए उससे मज़ीद कोई सवाल ना करने का सोच लिया। आई एम सॉरी, आई सेड, द ट्रबल इज़ आई एम अ राइटर एंड मोस्ट राइटर्स आर ट्रबली नोजी। तो मैंने उससे यहाँ पर उससे एक्सक्यूज़ किया कि आई एम सॉरी, दरअसल बात यह है कि मैं एक राइटर हूँ और राइटर्स ज़रा नोजी से होते हैं, दूसरों के अफेयर्स में, दूसरों के कामों में ज़रा मदाखलत करते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं। तो मैंने भी इसीलिए तुमसे ये सवाल कर दिए। यू रोट बुक्स? ही आस्क्ड। यस, राइटिंग बुक्स इज ओके, ही सेड, इट्स व्हाट आई कॉल अ स्किल्ड ट्रेड. I'm in a skilled trade too. The folks I despise them that spend all their lives doing crummy old routine jobs with no skill in them at all. You see what I mean? लेकिन यहाँ पर उसने कहा कि राइटर होना तो ठीक है, लेकिन ये एक स्किल ट्रेड है और एक स्किल, एक फ़न है, जैसे मैं भी एक फ़न जानता हूँ। लेकिन मसला ये है कि जो ये राइटर्स होते हैं ना, अपनी सारी ज़िंदगी बेवकूफ़ाना और जो है अजीब व गरीब सी कहानियाँ लिखने में गुजार देते हैं और उनके पास कोई काम धाम नहीं होता। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात को, बुरा मत मानना, लेकिन अजीब से लोग होते हैं ये ज़रा। What makes you think that I'm any good at my job? I asked. There's an awful lot of bad writers around. यहाँ पर मैंने उससे एक सवाल दाग दिया कि तुम्हें कैसे लगा कि मैं एक अच्छा राइटर हूँ, क्योंकि अजीब व गरीब से राइटर्स घूम रहे हैं चारों तरफ। You wouldn't be driving about in a car like this if you were no good at it, he answered. It must have cost a tidy packet, this little job. What can she do flat out? तो यहाँ पर उसने कहा कि तुम ड्राइविंग नहीं कर रहे होते इस गाड़ी में अगर तुम उसमें अच्छे नहीं होते। यकीनन तुम एक अच्छी अर्निंग कर लेते होगे, तभी तो तुम जो है वो ये इतनी ज़बरदस्त और इतनी जो है एक्सपेंसिव कार अफोर्ड कर पा रहे हो, तो तुम अच्छा कर लेते होगे, अच्छे राइटर होगे। इससे मैंने अंदाज़ा लगाया। अच्छा, वैसे ये बताओ कि तुम्हारी जो BMW है ये कितना तेज़, कितनी स्पीड तक जाती है? 129 miles an hour, I told him. जिसने शुरू में बताया था ना कि मेरी BMW कहाँ तक जाती है, 129 miles per hour स्पीड है, तो वही उसने यहाँ पर रिपीट कर दी। Open her up then and prove it, he said. Go on, governor. Open her right up. तो फिर चलो इसे स्पीड पर भगाओ और इसकी स्पीड को तेज कर दो। We came out of a roundabout on the dual carriageway and I pressed my foot down on the accelerator. The big car leaped forward as though she had been stung. In 10 seconds or so we were doing 90. तो बस उसकी ये बात कहनी थी। मैंने जो है वो गाड़ी को राउंड अबाउट से घुमाया, डबल रोड पर आया और बस एक्सेलरेटर पर पाँव रख दिया और आहिस्ता आहिस्ता करते हुए कितनी स्पीड पर पहुंच गए हम? 90 स्पीड पे पहुंच गए सिर्फ 10 सेकंड्स में। Lovely, he cried. Beautiful. Keep going. I had the accelerator jammed right down against the floor and I held it there. उसको बहुत मज़ा आने लगा। मैंने एक्सेलरेटर पर ही पाँव रखा और स्पीड बढ़ती रही। 100, he shouted. 110, 115. Go on. Don't slack off. Go on, go on. Get her up to 129. वो मेरी हिम्मत बनाता रहा। 100, 110, 115, बस कम मत करना स्पीड को, इसको 129 तक लेकर जाओ। At that moment I heard the scream of a police siren and then a policeman on a motorcycle loomed up alongside us on the inside lane and went past us and raised a hand for us to stop. बस यहाँ पर ड्रॉप सीन हो गया। एक बराबर से ही पुलिस की गाड़ी आ गई और उसने इशारा कर दिया कि जनाब रुक जाइए, आप जो है वो अपनी स्पीड से अपनी स्पीड लिमिट से ज़रा आगे बढ़ें, आप क्रॉस कर रहे हैं लिमिट को। बस यहीं पर जो है वो इसको अपनी स्पीड को रोकना पड़ा। ओह माय सेंटेड ऑन्ट, आई सेड, ओह दैट्स टॉर्न इट। तो यहाँ पर मुझे अंदाज़ा हुआ कि कुछ बहुत ही गलत हो चुका है। लेकिन क्या हो सकता था?
अब आगे देखते हैं. The policeman must have been doing about 130 when he passed us, and he took plenty of time slowing down. Finally, he pulled into the side of the road, and I pulled in behind him. तो पुलिस यकीनन 130 की स्पीड से चला रहा होगा जब उसने हमें पास किया था, और हमें काफ़ी वक्त लग गया स्लो होने में. मैं उसके पीछे आ गया, उसने अपनी गाड़ी मेरे आगे लगा दिया. आप देख सकते हैं नेक्स्ट पेज पर उसने अपनी बाइक जो है गाड़ी के बिल्कुल सामने लगा दी. दिस इज़ रियल ट्रबल, आई सेड. आई डोंट लाइक इट वन बिट. ये तो बहुत मुश्किल हो गई, मुझे ज़रा सा भी अच्छा नहीं लग रहा. मैंने अपने आप से कहा. डोंट टॉक टू हिम एनी मोर दैन इज़ नेसेसरी, यू अंडरस्टैंड, माई कंपेनियन सेड. जस्ट सिट टाइट एंड कीप मम. यहाँ पर मेरे जो हिचहाइकर था मेरे साथ, उसने मुझे जो है वो कहा कि ज़्यादा बातें नहीं करना, सिर्फ जितना पूछा जाए उतना जवाब देना और अपनी ज़बान ज़्यादा से ज़्यादा बंद रखना, सिर्फ ज़रूरी बात करना. Like an executioner approaching his victim, the policeman came strolling slowly towards us. We sat there like guilty schoolboys waiting for him to arrive. जैसे एक एग्जीक्यूशनर होता है ना, एक जल्लाद होता है, अपने मुजरिम तक पहुंचने की जो है वो जल्दी में होता है, इसी तरह से बिल्कुल पुलिसमैन मुझे अप्रोच करा था, मेरे पास आ रहा था. और हम बिल्कुल ऐसे जैसे स्कूल के बच्चे जिन्होंने कोई जुर्म किया हो, कोई शरारत की हो, तो वो होते हैं ना, हमारी हालत इस वक्त वैसे ही थी. हम उसके आने का इंतज़ार कर रहे थे. वॉच आउट फॉर दिस मैन, माई पैसेंजर विस्पर्ड. ई लुक्स मीन एज द डेविल. तो इतने में मेरे साथ जो कंपेनियन था उसने क्या कहा, इस आदमी को ज़रा आते हुए तो देखो, मतलब कितना टहलते हुए आ रहा है, इतना जो है वो बिल्कुल शैतान लग रहा है. The policeman came round to my open window and placed one meaty hand on the sill. इसका मतलब क्या हुआ कि पुलिसमैन जो था काफ़ी भारी भरकम सा था, उसने अपना हाथ मेरी खिड़की के ऊपर रख दिया. What's the hurry, he said. No hurry, officer, I answered. In that case, he said, you have got yourself into a nasty mess, haven't you? Do you know what the speed limit is in this country? 70, I said. तो ये इन दोनों के दरमियान में कॉन्वर्सेशन हुई. पुलिस ने कहा, क्या जल्दी है लड़के, क्यों इतना तेज़ तेज़ भाग रहे हो? मैंने कहा कोई जल्दी नहीं है सर. तो कह रहे हैं, आपको कुछ पता है कि आपने अपने आप को कितनी बड़ी गड़बड़ में डाल लिया है? आपको पता है कि स्पीड लिमिट कितनी है? मैंने कहा 70 miles per hour. And do you mind telling me exactly what speed you were doing now? और आप बताना पसंद करेंगे कि आप इस वक्त कितनी स्पीड पर गाड़ी चला रहे थे? I shrugged and didn't say anything. मैं वहीं पर बिल्कुल खामोश हो गया और मैंने अपने कंधे उचकाए जैसे मुझे कोई परवाह ना हो, और मैंने कुछ नहीं कहा. When he spoke next, he raised his voice so loud that I jumped. अगली दफ़ा जब उसने सवाल किया ना, तो उसने अपनी आवाज़ कुछ तेज़ कर ली कि मैं उछल गया. 120 miles per hour, he barked. That's 50 miles an hour over the limit. मैंने उसके जब दोबारा उसने मुझसे सवाल पूछा तेज़ आवाज़ में, तो मेरे मुंह से निकला कि 120 miles per hour पर चल रहा था, यानी 50 miles per hour ज़्यादा अपनी लिमिट से. He turned his head and stared hard at my passenger. And who are you? He asked sharply. If I done something wrong, my passenger asked. His voice was so soft and oily as hair cream. तो यहाँ पर जब उसने मेरे पैसेंजर को देखा, उससे पूछा तुम कौन हो? तो उसने कहा क्या हुआ ऑफिसर, कुछ गलत कर दिया है क्या मैंने? इतने नर्म लहजे में उसने बात की जैसे कि ऑयल के ऊपर से, मतलब उसने ज़बान में ऑयलिंग की हुई हो. That's more than likely, the policeman answered. Anyway, you are a witness. I'll deal with you in a minute. Driving license, he snapped, holding out his hand. उसने मुझसे ड्राइविंग लाइसेंस मांगा और उसने कहा मैं तुमसे तो बाद में डील करता हूँ, तुम तो जो है वो गवाह थे. I gave him my driving license. मैंने अपने ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया. He unbuttoned the left-hand breast pocket of his tunic and brought out the dreaded book of tickets. Carefully, he copied the name and address from my license. Then he gave it back to me. He strolled round to the front of the car and read the number from the number plate and wrote that down as well. He filed in the date, the time and the details of my offense. बस उसने अपनी जेब से निकाली फ्रंट पॉकेट से और मेरे ड्राइविंग लाइसेंस मांगा, उसमें से सारी डिटेल्स लिखी, नंबर प्लेट से उसने नंबर नोट किया, सब कुछ अच्छी तरह से मेरे जुर्म की उसने लिखत पढ़त कर ली थी. Then he tore out the top copy of the ticket. उसके बाद उसने जो टॉप कॉपी थी वो मुझे फाड़ के दी. But before handing it to me, he checked that all the information had come through clearly on his own carbon copy. और
कि कॉपी देने से पहले उसने अच्छी तरह से इस चीज़ को यकीन कर लिया कि उसने अपने पास जो कार्बन कॉपी रखी है उसमें सारी डिटेल्स आराम से सही से छप गई हैं. Finally, he replaced the book in his tunic pocket and fastened the button. उसने जल्दी से ये बुक वापस रखी और अपने जो उसने वो पहनी हुई थी वर्दी के ऊपर ये कोट उसके बटन्स लगा लिए. Now you, he said to my passenger, and he walked around to the other side of the car. From the other breast pocket, he produced a small book, a black notebook. अब वो मेरे पैसेंजर के पास गया. अब उसने दूसरी तरफ से दूसरा एक नोटबुक निकाला. Name, he snapped. Michael Fish, my passenger said. अब की दफ़ा उसने मेरे पैसेंजर से सवाल पूछा था तो उसने अपना नाम बता दिया. अब इस वाली नोटबुक के अंदर, दूसरी नोटबुक के अंदर उसने उसका नाम लिख लिया. अब सारी डिटेल्स ये पैसेंजर की लिखेगा. एड्रेस 14 Windsor Lane, Luton. Show me something to prove this is your real name and address, the policeman said. My passenger fished in his pockets and came out with a driving license of his own. The policeman checked the name and address and handed it back to him. What's your job? He asked sharply. I'm an odd courier. A what? An odd courier. Spell it. HODCA. That'll do. And what's a hot courier, may I ask? An odd courier officer is a person who carries the cement up the ladder to the bricklayer, and the odd is what he carries in. It's got a long handle, and on the top you have got two bits of wood set at an angle. यहाँ पर उसने सारी अपनी डिटेल्स बताई, अपना नाम बताया, अपना एड्रेस बताया और प्रूफ भी दिया उसका. अपना आईडी कार्ड निकाल कर के उसका नाम और पता बिल्कुल सही बताया उसने. फिर उसके बाद पूछा कि तुम करते क्या हो, तो उसने जब बताया तो क्योंकि वो एच हर जगह खाया जा रहा था तो यहाँ पर वो सब जगह आप देखेंगे कि अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है, वहीं वहाँ सब जगह एच है. ठीक है, तो उसने कहा अच्छा स्पेल करके बताओ. तो उसने स्पेलिंग स्टार्ट की. उसने कहा अच्छा ये बताओ होता क्या है ये. तो उसने कहा कि एक आदमी होता है जिसके पास एक जो है वो इस तरह का मेटल होता है जिसके अंदर वो ब्रिक्स को सीढ़ियों से ऊपर की तरफ पहुंचाता है जहां पर ज़रूरत होती है. ठीक है, तो मैं वो काम करता. all right. The policeman wrote all this down in the black notebook. Then he returned the book to its pocket and did up the button. उसके बाद ये सारी तफसीलात लिख के उसने बुक को वापस अपनी जगह पर रख दिया. Then I get back to the station. I'm going to do a little checking up on you, he said to my passenger. तो उसने कहा कि जब मैं अपने स्टेशन पे जाऊंगा ना वापस तो फिर मैं तुम्हारी चेकिंग करूंगा. उसने मेरे पैसेंजर से कहा. मी व्हाट हैव आई डन रॉन्ग, ही द रेड फेस्ड मैन आस्क्ड. तो जब उसने उससे ये बात कही तो उसने कहा मैंने क्या किया है, तो मेरी तलाशी क्यों लेंगे आप. आई डोंट लाइक योर फेस, दैट्स ऑल. मुझे तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं आई इसलिए. The policeman said, and we just might have a picture of it somewhere in our files. He strolled around the car and returned to my window. मैं जो है ना वहाँ पर तुम्हारी तस्वीर लूँगा और हम इसको अपनी कहीं फाइल्स में रख देंगे. उसके बाद मैं अपनी गाड़ी में बैठा और वो मेरी तरफ वापस आ गया और मेरी विंडो पर आके आई सपोज यू आर इन सीरियस ट्रबल, ही सेड टू मी. अब वो मुझसे मुखातिब था. उसने कहा कि तुम अब बड़ी मुश्किल में पड़ गए. येस ऑफिसर, यू वोंट बी ड्राइविंग दिस फैंसी कार ऑफ योर्स अगैन फॉर अ लॉन्ग टाइम. आई होप दे लॉक यू अप फॉर अ स्पेल टू. यहाँ पर उसने मुझे डराने धमकाने की कोशिश की कि अब की तुम अपनी फैंसी कार नहीं चला पाओगे और तुम्हें कैद भी किया जाएगा, तुम्हें जेल में भी डाला जाएगा. यू मीन प्रिजन, आई आस्क्ड अलार्म्ड. मैंने यहाँ हैरान होते हुए कहा आपका मतलब है जेल में. Absolutely, he said, smacking his lips in the clink behind the bars, along with all the other criminals who break the law. जी हाँ, आपको जेल में डाला जाएगा सलाखों के पीछे और जहाँ पर और क्रिमिनल्स होते हैं जो कानून को तोड़ देते हैं. एंड hefty fine into the bargain. और बार्गेनिंग के अंदर आपको बहुत हैवी फाइन भी लगेगा. nobody will be more pleased about that than me. और मुझसे ज़्यादा खुशी किसी को नहीं होगी. I'll see you in the court. both of you will be getting a summons to appear. तो यहाँ पर उसने कहा कि तुम दोनों से तो अब मेरी मुलाकात कोर्ट में होगी और तुम दोनों को वहाँ पर बुलाया जाएगा, अदालत में पेश होने के लिए आपको तलब किया जाएगा. He turned away and walked over to his motorcycle. He flipped the prop stand back into the position with his foot and swung his leg over the saddle. Then he kicked the starter and roared off up the road out of sight. बस ये सब कुछ कह के मुझे धमका के और उसके बाद फिर वो चलता बना, अपनी गाड़ी में बैठा, अपनी बाइक में बैठा और ये जा वो जा. तो डियर स्टूडेंट्स, मज़ा आ रहा है आप लोगों को. असल कहानी तो अब शुरू होने जा रही है. Phew, I gasped. That's done it. मैंने यहाँ पर सुक्का सांस लिया. We was caught, my passenger said. We was caught good and proper. I was caught, you mean? That's right, he said. What's you going to do now, Governor? I'm going straight up to London to talk to my solicitor. I said. I started the car and drove on.
तो जो इसका पैसेंजर था उसकी अंग्रेज़ी थोड़ी सी ख़राब थी, तो उसके सेंटेंसेस को करेक्ट किया। जो वो ये कहना चाह रहा था कि जो है वो तुम पकड़े गए हो, लेकिन उसके बाद फिर उसने कहा कि जो है अब तुम क्या करोगे। तो उसने कहा कि मैंने कहा कि जो है ना मैं अब अपने लॉयर के पास जाऊँगा और मैं उससे बात करूँगा। You mustn't believe what he said to you about going to prison, my passenger said. They don't put nobody in the clink just for speeding. तुम्हें इस पुलिस ऑफिसर की बातों पर यकीन करने की ज़रूरत नहीं है। ये किसी को भी सिर्फ स्पीडिंग की वजह से, ओवर स्पीडिंग की वजह से जेल में नहीं डालते। Are you sure of that? I asked. I'm positive, he answered. Then they can take your license away and they can give you a whopping big fine, but that will be the end of it. तो उसने कहा कि मैं काफ़ी पॉजिटिव हूँ, काफ़ी मतलब पॉजिटिव सोचना चाहिए हमें। हाँ, बस सिर्फ ये है कि तुम्हारा लाइसेंस जो है वो ले लिया गया है, तो तुम्हारे ऊपर काफ़ी हैवी फाइन लग सकता है, लेकिन बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। आई फेल्ट ट्रेमेंडसली रिलीव्ड, मुझे बहुत सुकून मिल गया। By the way, I said, why did you lie to him? लेकिन तुमने झूठ क्यों बोला यहाँ पर? मैंने उससे सवाल किया। Who? Me? He said, what makes you think I lied? मैं तो कोई झूठ नहीं बोला, तुम्हें क्यों लगा कि मैंने झूठ बोला है? Who? तो you told him you were an unemployed odd career, but you told me you were in a highly skilled trade. तुमने उसको तो बताया कि तुम एक odd career हो, हालांकि तुमने मुझे तो बताया था कि तुम तो एक highly skilled trade में, यानी बड़ा अच्छा तुम्हारा तिजारत का काम है। So I am, he said, but it don't pay to tell everything to a copper. लेकिन सब कुछ सच है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि मैं हर बात उस पुलिस ऑफिसर को बताऊंगा। So what do you do? I asked him. It is something you are ashamed of. तो असल बात क्या है, तुम करते क्या हो? क्या तुम्हें शर्मिंदगी है अपने किसी काम पर जो तुमने मतलब छुपा रहे हो? Then why won't you tell me? तुम मुझे क्यों नहीं बता रहे हो? नहीं, उसने कहा ashamed, he cried. Me ashamed of my job? तो उसने क्या कहा कि नहीं, तो मैंने क्या कहा कि जो है वो नहीं, उसने कहा कि नहीं, शर्मिंदगी? कैसी शर्मिंदगी? मुझे क्यों शर्मिंदगी होगी अपनी जॉब पर? तो फिर तुम मुझे बता क्यों नहीं रहे हो? You writers really is nosy parkers, aren't you? He said, and you ain't going to be happy, I don't think, until you have found out exactly what the answer is. तुम लोग ना, तुम जो राइटर्स होते हो, ये बहुत ज़्यादा लोगों के मामलात में जो है वो टोह लेते हो और उनके मामलात के पीछे पड़ जाते हो। तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा जब तक कि तुम ये जान न लो कि मैं एक्चुअली करता क्या हूँ। तो अब यहाँ पर जो है वो आई kept quiet and stared at the road ahead. अब मैं खामोश हो गया उसकी ये बात सुन के और आगे रास्ता देखने लग गया। I'm in a very peculiar train, he said. तो यहाँ पर उसने क्या कहा? उसने कहा कि मैं एक बहुत ही अजीब व गरीब किस्म का ट्रेड करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर उसने अपना आंसर देना स्टार्ट किया। अब आप ज़रा सुनते जाइए कि उसका ट्रेड था क्या और उसने क्या ज़बरदस्त काम किया था। ठीक है, वीडियो को एंड तक आपने ज़रूर देखना है ये जानने के लिए कि आखिर में क्या हुआ। That's why I asked to be extra careful. Oh, I'm talking to, you see, I am to know, for instance, you are not another copper in plain clothes. यहाँ पर ना अपनी बात को जारी रखते हुए उसने एक बात कही, बस मैं एक एहतियातन आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि कहीं सादे कपड़ों में तुम भी कोई पुलिस ऑफिसर तो नहीं हो? Do I look like a copper? No, he said, you don't and you ain't. Any fool could tell that. तो मैंने उससे कहा, क्या मैं तुम्हें पुलिस वाला लगता हूँ? नहीं नहीं, तुम पुलिस वाले लगते नहीं हो और तुम पुलिस वाले हो भी नहीं सकते हो। तो कोई भी जो है ना बेवकूफ़ ये सब कुछ कह सकता है। He took from his pocket a tin of tobacco and a packet of cigarette papers and started to roll a cigarette. उसने अपनी जेब से एक सिगरेट निकाला और उसके बाद उसको बड़ी जल्दी से उसने रोल करके उस सिगरेट को जलाया। I was watching him out of the corner of one eye and the speed with which he performed this rather difficult operation was incredible. जिस तरह से उसने अपने सिगरेट को लिट किया और निकाल के इतनी तेज़ी से जो है ना अपने मुंह में लगाया, जितनी तेज़ी से उसने ये सारे काम किए थे ना, मैं अपने आँखों के कॉर्नर से देख रहा था। मतलब इन सबको देख के मैं बिल्कुल स्टन्ड रह गया, बिल्कुल शॉक्ड हो गया। बहुत ही नाकाबिल यकीन काम किया था उसने। आई हैव नेवर सीन एनीवन रोल अ सिगरेट एज फास्ट एज दैट, आई सेड। मैंने उससे कहा कि मैंने इतना तेज़ी से सिगरेट को रोल करते हुए आज तक किसी को नहीं देखा।
He sat back and smiled. वो पीछे होके बैठा और मुस्कुराने लगा. It pleased him very much that I had noticed how quickly he could roll a cigarette. You want to know what makes me able to do it? वो बहुत खुश हुआ मेरी इस बात से, इस कमेंट से. और उसके बाद उसने कहा, क्या तुम जानना चाहोगे कि मैं ऐसा इतनी तेज़ी से कैसे कर सकता हूँ? Go on then. It's because I have got fantastic fingers. These fingers of mine, he said, holding up both hands high in front of him, are quicker and cleverer than the fingers of the best piano प्लेयर इन दी वर्ल्ड. यहाँ पर उसने अपनी फिंगर्स दिखाते हुए कहा कि ये सब कुछ इन कुदरती खूबसूरत उंगलियों की वजह से है जो इस तरह से डिज़ाइन हुई हुई हैं कि मैं इतनी तेज़ी से ये सब काम कर सकता हूँ. इवन एक बेस्ट पियानो जो बजाते हैं ना, वो उंगलियों से बजाता है, सारा कमाल उंगलियों का होता है पियानो बजाने में, उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से अपने फिंगर्स से काम ले सकता हूँ. I glanced at his fingers. They were so beautifully shaped, so slim and long and elegant. They didn't seem to belong to the rest of him at all. They looked more like the fingers of a brain surgeon or a watchmaker. मैं उसकी उंगलियों को देख के बिल्कुल हैरान रह गया कि तो किसी सर्जन या वॉचमेकर की उंगलियां लग रही थी, इतनी खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन हुई हुई थी. My job, he went on, is 100 times more difficult than playing the piano. Any fool can learn to do that, but there's not one person in 10 million can learn to do what I do. Oh, about that? Amazing, I said. उसने कहा पियानो तो कोई भी बजा लेता है, कोई भी बेवकूफ़ कर सकता है, लेकिन मेरी जो जॉब है ना वो 10 मिलियन यानी 1 करोड़ लोगों में भी किसी एक बंदे का करना बहुत मुश्किल है. तो मैं उसकी बात सुन के हैरान रह गया. यू आर darn right, it's amazing, he said. हाँ, तुम सही कह रहे हो, ये वाकई एक अमेजिंग बात है. उसने मेरी बात में ऐड किया. I was taking the car along slowly now. अब मैं अपनी गाड़ी को बहुत स्लो चला रहा था, to make quite sure I wasn't stopped again, ताकि उसकी बात रुके नहीं वो कहीं पर भी. मैं अपनी गाड़ी को आहिस्ता आहिस्ता चलाते हुए जा रहा था. Suddenly my passenger was holding up a black leather belt in his hand. अचानक मैंने उसको देखा कि उसने ये लेदर की जो बेल्ट थी ना वो अपने हाथों में पकड़ी हुई. Ever seen this before? He asked. The belt had a brass buckle of unusual design. उसके ऊपर एक ब्रास का बकल था. उसने पूछा, क्या तुमने इस बेल्ट को कभी इससे पहले देखा है? Hey, I said, that's mine, isn't it? It's mine. I reached down and felt for my belt. It was gone. अरे ये तो मेरी है. हाँ, मैंने देखा है इसको, लेकिन ये तुम्हारे पास कैसे आई? और मैंने फिर अपनी बेल्ट की तरफ देखा तो वो गायब थी. You mean you took it off while we have been driving along? I asked, flabbergasted. मैं बिल्कुल शॉक्ड, बिल्कुल हैरान परेशान. मैंने उससे पूछा, ये तुमने हमारे बातें करते करते के दौरान निकाल ली? He nodded, watching me all the time with those little black ratty eyes. वो बड़े एक फातिहाना अंदाज में मेरी तरफ देखते हुए कहने लगा, मतलब उसने सर हिलाया कि जी हाँ ये बेल्ट मैंने ही निकाली. That's impossible, I said. I would have seen you doing that. ये कैसे हो सकता है? मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं ये सब कुछ करते हुए. But you don't, didn't you? He said. Did you? हाँ, तुम मुझे नहीं देख पाए ना, तुमने मुझे देखा. He said triumphant. He dropped the belt on his lap and now all at once there was a brown shoelace dangling from his fingers. And what about this then? He exclaimed, waving the shoelace. Anyone around her missing a shoelace? उसके बाद अभी मैं इस शॉक से बाहर नहीं निकला था कि उसके हाथ में एक शूलेस, एक ब्राउन कलर का शूलेस वो लहराने लगा. तो कहा कि उसके बाद कहने लगा कि अच्छा इस शूलेस के बारे में क्या ख्याल है, ये किसका हो सकता है? I glanced down at my shoes. The lace of one of them was missing. Good grief, I said. मैंने अपने जूते की तरफ देखा, एक शूलेस मेरा गायब था. How did you do that? I never saw you bending down. तुम ये कैसे कर सकते हो? मैंने तो तुम्हें झुकते हुए एक दफ़ा भी नहीं देखा. Yes, I said, because you never saw nothing, he said proudly. तो इसके जवाब में उसने कहा कि तुमने तो कुछ भी नहीं देखा. तो and you know why? और तुम्हें पता है ऐसा क्यों? Yes, I said, because you have got fantastic fingers. मैं हैरान परेशान उसकी बात के कहने लगा, हाँ यकीनन तुम्हारी fantastic fingers की वजह से हुआ होगा. Exactly right, he cried. He sat back and smiled. He knew he had impressed me greatly with those 2 tricks. वो बड़े फातिहाना अंदाज में कामयाबी अपने शो करते हुए, बड़ा प्राउड फील करते हुए अपने आप को जो कह रहा था कि बिल्कुल सही जवाब है तुम्हारा कि ये मेरी फिंगर्स का कमाल है. और उसको अंदाज़ा हो गया था कि मैं उसकी दोनों ट्रिक से काफ़ी इम्प्रेस हो चुका हूँ. आई डोंट वॉन्ट टू बी लेट, ही सेड. व्हाट टाइम इज़ इट? मैं लेट नहीं होना चाहता, टाइम क्या हो रहा है? देयर इज़ अ क्लॉक इन फ्रंट ऑफ यू, आई टोल्ड हिम. तुम्हारे सामने तो घड़ी लगी हुई है. आई डोंट ट्रस्ट कार क्लॉक्स. मुझे गाड़ी की क्लॉक्स के ऊपर एतबार नहीं होता, ही सेड.
What does your watch say? अपनी घड़ी में देखकर बताओ, अपनी रिस्ट वॉच में देख के बताओ कि टाइम क्या हो रहा है. I hitched up my sleeve to look at the watch on my wrist. मैंने अपने हाथ को ऊपर उठाया घड़ी में टाइम देखने के लिए. It wasn't there. घड़ी तो वहाँ थी ही नहीं. He held out his hand and there was my watch lying in his palm. और इतने में ही उसने अपने जब हाथ में मेरी घड़ी को लहराते हुए मेरे सामने पेश किया. Nice bit of stuff this. क्या ज़बरदस्त चीज़ है ये, उसने कहा. He said, superior quality, बहुत ही हाई-फाई क्वालिटी की है. 18 karat gold. Easy to sell. It's never any trouble getting rid of quality goods. तो यहाँ पर उसने उस घड़ी की तारीफ में कुछ अल्फाज कहे. I'd like it back if you don't mind, I said rather huffily. मैंने थोड़ा रूड होकर उससे कहा, देखो ये मुझे वापस कर दो, अगर तुम बुरा नहीं मानो तो ये मुझे वापस चाहिए. He placed the watch carefully on the leather tray in front of him. I wouldn't nick anything from you, Governor, he said. You are my pal. You are giving me a lift. तो यहाँ पर उसने सारी चीज़ें वापस रखते हुए कहा, अरे अरे परेशान नहीं हो, मैं तुमसे कुछ भी नहीं लूँगा गवर्नर, तुम तो मेरे दोस्त हो और तुमने तो मुझे लिफ्ट दिए, तुमने मेरे ऊपर एहसान किया है और मैं तुम्हारी कोई चीज़ चुराऊँगा. नहीं नहीं. आई एम ग्लैड टू हियर इट, आई सेड. मुझे खुशी हुई ये सुनकर. मैंने कहा, ऑल आई एम डूइंग इज आंसरिंग योर क्वेश्चंस, ही वेंट ऑन. ये सब कुछ तो मैंने तुम्हारे सवाल के जवाब देने के लिए किया. यू आस्क्ड मी व्हाट आई डिड फॉर अ लिविंग एंड आई एम शोइंग यू. तुमने मुझसे पूछा था ना कि मैं ज़िंदगी गुजारने के लिए क्या करता हूँ, क्या कमाता हूँ, तो बस वही सारे तुम्हें शो कर रहा हूँ. So you are a pickpocket, I said. तो तुम क्या जेब कतरे हो? I don't like that word, he answered. It's a vulgar word. Pickpockets are coarse and vulgar people. They lift money from the blind old lady. तुम मुझे जेब कतरा ना कहो, ये बहुत ही बुरा लफ्ज़ है. और जेब कतरे तो बेचारी नाबीना ख़वातीन की जो है वो चीज़ें चुरा लेते हैं. What do you call yourself then? तो तुम अपने आप को क्या कहते हो? Me, I'm a fingersmith. I'm professional fingersmith. He spoke the words solemnly and proudly. भाई मैं तो fingersmith हूँ, मैं तो अपनी उंगलियों की कारीगरी दिखाता हूँ, तो जो है वो मैं एक प्रोफेशनल हूँ. उसने काफ़ी प्राउडली ये बात का जवाब दिया मुझे. आई हैव नेवर हर्ड दैट वर्ड बिफोर, आई सेड. डिड यू इन्वेंट इट? मैंने ये लफ्ज़ कभी इससे पहले नहीं सुना. क्या तुमने ये अपना लफ्ज़ खुद ही बनाया है? ऑफ कोर्स आई डिडंट इन्वेंट इट, एंड ही रिप्लाइड. यू हैव हर्ड ऑफ अ गोल्ड स्मिथ एंड अ सिल्वर स्मिथ फॉर इंस्टेंस. दे आर एक्सपर्ट्स विद गोल्ड एंड सिल्वर. आई एम एन एक्सपर्ट विद माई फिंगर्स, सो आई एम अ फिंगर स्मिथ. तो उसने कहा, नहीं नहीं, मैंने ये लफ्ज़ खुद से ईजाद थोड़ी किया है. क्या तुमने गोल्ड स्मिथ और सिल्वर स्मिथ नहीं सुना? वो एक्सपर्ट होते हैं गोल्ड और सिल्वर में, तो उनको सिल्वर स्मिथ कहते हैं. मैं अपनी फिंगर्स में एक्सपर्ट हूँ तो मुझे फिंगर स्मिथ कहते हैं. एंड दैट्स वाई यू गो टू दी रेसेस. और यही वजह है कि तुम रेसेस में जाते हो. रेस मीटिंग्स आर गुड, ही सेड. You just stand around after the race watching for the lucky ones to draw their money. रेस मीटिंग्स अच्छी होती हैं, आप वहाँ जाओ, खड़े होकर देखते रहो. जो लकी होते हैं, जो लकी लोग होते हैं, खुशकिस्मत लोग होते हैं, वो अपने पैसे निकालते हैं. एंड व्हेन यू सी समवन कलेक्टिंग अ बिग बंडल ऑफ नोट्स, यू सिंपली फॉलो आफ्टर हिम एंड हेल्प्स योरसेल्फ. बस जहाँ पर आपको नज़र आया कि कोई आदमी बहुत सारे पैसे निकाल रहा है, कोई गोल्ड डिगर है, तो आपने उसी के पीछे चले जाना है और बस इंतज़ार करना है और अपनी मदद आप करनी है. पर आई नेवर टेक्स नथिंग फ्रॉम अ लूज़र. लेकिन मैं किसी लूज़र से कुछ नहीं लेता. नॉर फ्रॉम पुअर पीपल नीदर. और किसी गरीब का भी कुछ नहीं चुराता. आई ओनली गो आफ्टर द विनर्स एंड द रिच. यहाँ पर उसने अपनी सफाई में कहा कि मैं सिर्फ जीतने वालों के और अमीर लोगों के पीछे जाता हूँ, सिर्फ उनसे ही कुछ ना कुछ हाथ साफ करता हूँ. दैट्स वेरी थॉटफुल ऑफ यू, आई सेड. मैंने उसकी सोच को सराहा कि ये तो काफ़ी मतलब इम्प्रेसिव बात है कि तुम किसी गरीब के साथ जो है कम अज़ कम कुछ गलत नहीं कर रहे हो. वी ड्रोव ऑन फॉर अ वाइल विदाउट टॉकिंग. कुछ देर खामोशी हो गई. वी ड्रोव. देन दैट्स पुलिस मैन्स गोइंग टू चेक अप ऑन यू प्रीटी थॉरली. लेकिन अब ये जो पुलिस वाला आ रहा है, फिर मैंने उससे कहा कि अब तो वो तुम्हें काफ़ी अच्छी तरह से चेक करेगा. आई सेड, डजंट दैट वरी यू अ बिट? तुम्हें क्या अब कोई जो है वो इस बात में तकलीफ नहीं है? मैंने पूछा. नोबडी इज चेकिंग अप ऑन मी, ही सेड. कोई मुझे चेक नहीं करने वाला है. ऑफ कोर्स दे आर. क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल करेंगे वो तुम्हें चेक. ही इज गॉट योर नेम एंड एड्रेस रिटन डाउन मोस्ट केयरफुली इन हिज ब्लैक बुक. उसने ब्लैक बुक में तुम्हारा नाम पता सब लिखा था, तो वो तुम्हें यहाँ पर पहुँचने पे चेक तो करेगा. द मैन गेव मी अनदर ऑफ हिज स्लाई रेटीज लिटिल स्माइल्स. यहाँ पर बड़ी एक क्या कहना चाहिए, शरारत भरी नहीं बल्कि एक बड़ी चालाक वाली जो हंसी होती है ना चेहरे पर, जिसमें मक्कारी इंसान की झलक रही होती है, तो वैसे मुस्कुराते हुए उसने मुझे देखा. he said. So he asked, but I'll bet he ain't got it all written down in his memory as well. उसने अपने ब्लैक डायरी में लिखा ज़रूर होगा, लेकिन दिमाग में थोड़ी ना कुछ लिखा है. What's memory got to do with it? I asked. इसका दिमाग से क्या ताल्लुक़ है इस बात का?
It's written down in his book, isn't it? उसने वो सब कुछ अपनी बुक में लिखा था ना? Yes, Governor, it is. But the trouble is, he's lost both books. The one with my name in it and the one with yours. लेकिन गवर्नर, मैंने उससे पूछा भाई उसने अपनी बुक में सब कुछ लिखा था तुम्हारा नाम पता, तो अब वो तुम्हें कैसे नहीं पकड़ेगा? तो यहाँ पर उसने कहा हाँ हाँ ठीक है, उसने बुक में ही लिखा था ना, मेमोरी में तो नहीं लिखा था। तो जो है वो अगर उसकी दोनों बुक्स ही गायब कर दी जाए तो प्रॉब्लम यही है कि उसने अपनी दोनों बुक्स खो दी, वो वाली बुक भी जो पहले निकाली थी जिसमें तुम्हारा नाम पता लिखा था, और वो वाली बुक भी जो उसने बाद में निकाली थी जिसमें मेरा नाम और पता लिखा था। इन द लॉन्ग डेलिकेट फिंगर्स ऑफ हिज राइट हैंड द मैन वाज होल्डिंग अप in triumph the two books he had taken from the policeman's pocket. Here you can see in the picture, वो दोनों बुक्स निकाल कर दिखाता है कि ये दोनों बुक्स तो मैंने अपने हाथ की सफाई से हासिल कर ली। यानी पुलिस अब जब जेब में हाथ डालेगा तो उसको कुछ मिलेगा ही नहीं, ना तुम्हारा नाम पता और ना मेरा नाम और पता, तो वो किसको पकड़ेगा और किसको नहीं पकड़ेगा। तो here is the end of this story students. I hope you liked it. Thanks for watching the video till the end. इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।